Yes, students, hello and very good morning and a very warm welcome to today's class. I hope you all are doing great at your home and you are studying hard too. As you know that study itself in today's time is the most important part of our life, and we have to be very prim and proper when we study. And when we are talking of English as a language, we know that grammar plays a most significant role in it, right? बिकॉज आपने ग्रामेटिकली अगर कोई चीज को गलत बोल दिया तो आपकी गलती वहीं पे पकड़ी जाती है ना. एवरीबडी सेज कि तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता प्रॉपरली. एंड यू नो इट्स आवर सेकंड लैंग्वेज एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज दैट वी यूज एट स्कूल. So to make your English good, you need to have the basic knowledge of grammar, and that too in a very good manner. So for that, we'll begin our class with the topic that is determiners. Now you can write determiners. Okay, you can see it's written determiner. Now from the word name itself, you can say determiner means what? Determining words. The words that determine something. Determine करना क्या होता है? When you say ना I have a strong determination to do this, उसका क्या मतलब है कि आपने किसी चीज को करने का क्या कर लिया है? दृढ़ निश्चय कर लिया है. दृढ़ निश्चय इज व्हाट? जब वो चीज निश्चित हो जाती है. So that is known as what? When the things become definite, or rather it is still indefinite. We can take it in the term of what? Determiners. That is the words that determine something. And what is the word determining? किसको determine कर रहे हैं? वो क्या किसी noun को determine कर रहे हैं, किसी verb को determine कर रहे हैं, or they are determining a object in a sentence. As we all know that in a sentence the main elements are what? Subject, verb and object. तो वो किसको कर रहे हैं डिटरमाइन? ऑब्वियसली दे आर डिटरमाइनिंग द नाउन्स. सो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? दे आर वर्ड्स जो क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, दे डिटरमाइन व्हाट? दे डिटरमाइन द नाउन्स. ठीक है, दे डिटरमाइन व्हाट? दे डिटरमाइन द नाउन्स. एंड दे डिटरमाइन द नाउन्स इन टू वेज. हमें पता चलता है कि या तो जो नाउन है, क्या वो नाउन डेफिनेट है? ठीक है, नाउन को निश्चित करना, या फिर वो अभी भी क्या है? इनडेफिनेट है. ठीक है, इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित है. तो दिस इज द साइकिल वी कैन सी. डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट डिटरमाइन नाउन्स. एंड ये प्लेस कहाँ होते हैं? ऑब्वियसली नाउन के पास में. एंड दे जस्ट टेल्स अस दैट वेदर द नाउन इज डेफिनेट और नाउन इज इनडेफिनेट. डिटरमाइन हैज बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसके डिटरमाइनर्स के. ठीक है, and we are going to move as per according to our books and the syllabus that is mentioned for us. So in that, the first determiner that we are going to take is articles. Articles. ठीक है, what we take? Articles. आर्टिकल्स आपको पता है. आर्टिकल्स को समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट एक लॉजिक समझो. क्या लॉजिक समझना है वो आपको? वो लॉजिक ये है कि ऑल ऑफ यू नो, आप नर्सरी में थे, from the part that you began your study was what? ABCD. Okay, so have you all studied ABCD? Yes. So कहाँ से शुरू होती है ABCD? It starts from A and it ends at Z, right? How many alphabets are there? It has 26 alphabets. ठीक है ना? Out of the 26 हमारे पास में क्या होते हैं? Vowels like A, E, I, O and U. ये क्या है हमारे? These are the vowels. Fine. अब vowels के बाद में how many? These are कितने हैं? These are 5. So out of 26, when 5 are removed, how much is remained? That is 21. ये 21 क्या है हमारे पास में जो letters बच गए? ये हमारे consonants होते हैं. Okay? Now when we talk of articles, उसमें इस पूरी चीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. Why? Because जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं दो. एक होता है डेफिनेट आर्टिकल एंड अनदर वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल. Indefinite article we have the, and indefinite article we have a and an. Okay, now when we are talking of the and a and an, तो a and an के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इस चीज का.
क्या रोल होता है इसका? वेयर यू हैव टू प्लेस ए, व्हाट यू आर गोइंग टू कंसिडर, वेयर यू हैव टू प्लेस एन, व्हाट यू आर गोइंग टू कंसिडर आर द टू वेरी मेन थिंग्स. एंड हाउ यू नो, जब हम बात करते हैं वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की, द वर्ड कम्स अलोंग विद दैट, दैट इज नोन एज साउंड्स. Vowel sounds, consonant sounds. Keep it in your mind that we are talking of sounds. हम letters की बात नहीं कर रहे हैं. We are not talking of A, we are not talking of E, I, O or U. No, we are taking of sound. That is A, E, U. We are just talking of the sounds of the vowel. Okay. Now what happened? जब हमने बचपन में elephant के आगे एन लगाया था और umbrella के आगे एन लगाया था, it was a luck by chance वाली situation थी वो, that it gave a vowel sound and it looks like a vowel. हमने क्या किया, हमने उस चीज को जनरलाइज कॉन्सेप्ट बना लिया अपनी लाइफ का. वेर एवर हमें फर्स्ट वर्ड एक वॉवल दिख जाता है ना, हम वहां पे फटाक से एन लगा देते हैं. एंड समटाइम्स आवर मार्क्स आर कट एंड वी ऑलवेज से कि मैंने सही लिखा था, आई नो, बट पता नहीं वहां पे मार्क्स क्यों कट हो गए. दिस इज द रीजन, बिकॉज आपने उसको कौन से लॉजिक से लगा दिया था? द लॉजिक दैट यू लर्न इन योर पास्ट वेरी यंगर क्लासेस, दैट इज जहां पे भी आपको वॉवल दिखा यू प्लेस्ड एन. बट इट्स नॉट रॉन्ग. आपने एलिफेंट के आगे एन लगाया, अम्ब्रेला के आगे एन लगाया, इट इज करेक्ट. एंड वन रीजन इज ऑल्सो करेक्ट कि वहां पे आपको वॉवल दिखा. बट अ थिंग टू बी कंसिडर्ड एंड केप्ट इन योर माइंड इज व्हाट, कि वो वहां पे साउंड भी वॉवल की दे रहा था. सो द इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले होता है ना यहाँ पे, वो किसका होता है? इट्स ऑफ द साउंड. ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन द साउंड, नॉट द लेटर. तो जितनी भी वॉवल साउंड्स है, वॉवल लगाना है तो वॉवल साउंड पे फोकस करो. कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड पे फोकस करो, ना कि लेटर पे. नाउ ये चीज सिर्फ ए और एन के लिए यूज होती है. वेन एवर वी आर यूजिंग ए, so you have to focus on the consonant sounds. ठीक है, consonant sounds. When you are talking of an, you have to focus on the vowel sounds. Again and again I am repeating that you have to focus on the sounds, not the letters. ये letters और sound का जो हम कर देते हैं ना गड़बड़, उसी के कारण हमारे मार्क्स चले जाते हैं. तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि consonant sound and vowel sounds पे फोकस करना है. ठीक है. Now, till here, if anybody has any doubt, so you can ask. Yes. Okay, so if the thing is clear till here, that for an we have to use vowels and for a we have to use the consonant, and for the के लिए क्या चीज है? the हमें पता है, it's definite, that is वो fix है. जो चीज फिक्स है उसमें वॉवल आओ चाहे कॉन्सोनेंट आओ, इट डज नॉट मैटर मच, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, कि कुछ कुछ चीजें हैं दैट आर ऑलवेज अ काइंड ऑफ डाउट. तो वो डाउट्स को हम क्लियर करते हैं. देखो कैसे होंगे वो डाउट्स क्लियर. अभी देखो, अभी आपको 2-3 ऐसे एग्जांपल्स दूंगी, लॉजिकली आपकी बहुत सी चीजें क्लियर होंगी. एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टीच समवन आल्सो कि देखो ये ऐसे होता है एंड वी केम टू नो अबाउट दैट. सो नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ एन. ठीक है, अब देखो, आपको अगर मैंने बोला डैश एलिफेंट, वेरी क्लियर, आपने ई देखा, आपने एन लगा दिया. ठीक है, बिल्कुल सही है, एन करेक्ट है, ये एन बिल्कुल ओके. व्हाई इट्स ओके? बिकॉज ये आपको ई दिख रहा है एंड ई इज अ वोवल, है ना. बट हमने ये लॉजिक नहीं लगाया यहाँ पे. ई को बोलो एलिफेंट, ये साउंड भी कौन सी दे रहा है? वोवल की दे रहा है. हमने साउंड को देख के यहाँ पे एन लगाया एंड दैट इज व्हाई आवर सेंटेंस इज करेक्ट. ओके, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो. ये यहाँ पे एक डैश दिया है और मैंने यहाँ पे लिखा है ऑनेस्ट मैन. नाउ गो टू द फर्स्ट वर्ड एच. एच क्या है? क्या एच यहाँ पे दिख रहा है आपको? AEIOU में एच दिख रहा है? नो, बट एच इज अ पार्ट ऑफ ABCD. So where does H stand? H is in this 21 consonants. ठीक है, तो H तो consonant है ना. What should I place here? Should I place a, because it's a consonant? Okay, some people will place A, but ये क्या हो जाएगा? Wrong. Now next again take this blank and honest man. Now another child, उसने भी यहाँ पे H देखा, but उसने यहाँ पे N लिखा. क्या उसका करेक्ट है? Yes, obviously it's correct.
Why it is correct? Because ये जो honest है ना, ये honest नहीं है. We never say honest. We always say honest. H goes silent and then the sound that is coming, honest. तो ये कौन सी sound आ गई? It is the vowel sound. Okay? So when we are talking here of vowel, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? An. Rather it is a consonant in the view, but actual sound it's giving of a vowel. So हमने यहाँ पे क्या ले लिया? An ले लिया. Clear? अब एक और एग्जाम्पल देखो इसी का. डैश आर, HOUR, घड़ी के अंदर बजते हैं ना आर्स, वो. ठीक है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ आर, तो यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पे भी एच है, बट हार बोलते हो कभी? हार. 1 हार, 2 हार, 3 हार बोलते हो? नो. यू ऑलवेज से 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, आर बोलते हो. ठीक है. तो यहाँ पे भी एच साइलेंट चला जाएगा. हियर ऑल्सो मीन्स एन आर. ओके. एंड रिमेंबर वन थिंग, ये हमेशा यूज किए जाते हैं सिंगुलर्स के लिए. ठीक है. इट इज ऑलवेज यूज फॉर सिंगुलर्स. मेक इट अ बबल बॉक्स. ठीक है. इट इज ऑलवेज यूज फॉर सिंगुलर. सो वी आर टेकिंग इट एन आर. ओके. फाइन. क्लियर है? चलो. नाउ वील मूव टू ए. अब ए में भी ऐसे ही कुछ वर्ड्स देखेंगे, उससे हमारे ये जो लॉजिक्स है दे आर गोइंग टू गेट क्लियर ऑफ. नाउ वी आर मूविंग टू. ठीक है. अब इसके एग्जाम्पल देखो. हमने यहाँ पे बोला शर्ट. रैंडमली कोई भी, इट्स ऑल्सो यूज फॉर सिंगुलर, ये भी सिंगुलर. आई एम टॉकिंग ऑफ रैंडम एनी शर्ट. मैं किसी भी शर्ट की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अ शर्ट. ओके. इट इज गोइंग टू कम अ शर्ट. यहाँ पे क्या आ जाएगा? अ शर्ट. कोई भी शर्ट है, डेफिनेट तो नहीं है ना. तो इनडेफिनिट ए और एन वैसे इनडेफिनिट होते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया? अ शर्ट. नाउ इफ अ पॉइंट कम्स लाइक दिस एंड उसके बाद में आ जाए 1 वे स्ट्रीट, एक तरफा रास्ता, 1 वे स्ट्रीट. ठीक है. अब यहाँ पे ये देखो ओ. अब ये ओ यहाँ पे दिख रहा है आपको वॉवल में? यस. ये रहा है ना यहाँ पे. बट आप इसको बोलो ओ एन ई. एवरीबडी सिटिंग देयर एट द होम्स. बोलो एक बार ओ एन ई क्या होता है? इट्स 1. आपने इसको ऑन बोला, आपने इसको ऑन बोला, ओ एन ई ऑन थोड़ी बोला. आपने क्या बोला? ओ एन ई 1. तो आप साउंड देखो इसमें क्या आ रही है? ओ की आ रही है? नहीं. ये 1 को जब हम बोलते हैं तो ये आपको क्या साउंड दे रहा है? व की साउंड दे रहा है. व की साउंड किसी भी लेवल पे एक वोवल नहीं होती. ठीक है. तो इसने आपको क्या साउंड दिया? व की साउंड दी है इसने आपको. तो ये भले दिखने में आपको एक वोवल लग रहा है, बट ये साउंड कौन सी दे रहा है? कॉन्सोनेंट की. तो जब हम कॉन्सोनेंट यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? ए. तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? ये करेक्ट हो गया. क्लियर? ओके. यस. Yes. I hope you understood it nicely. Demonstrative, these, that, these, those. This means the thing is closer to you and it's singular. That means the thing is singular but is at a distance. These means the things are plural but closer, and those means the things are plural but far. So this, that, these and those. Now with this 2 sections completed. Now अगर कोई doubt है with demonstratives or with articles, just raise your hand so that हम doubt को clear कर लेते हैं. Yes. No doubt. Okay, if it's clear, yes Aditya. Yes Aditya, now raise your hand and unmute yourself. Ma'am, if someone says that the people are sitting on that chair, so ma'am, the is also used in an indefinite sentence, and we are pointing towards the people, but we don't know who are they. We are not talking about any kind of universal truth for any particular place. We are talking about some people. The people are sitting on that chair. द तो यूज ही नहीं करोगे आप उसके लिए. द आप सिंगुलर के लिए यूज करते हो. हाउ कैन यू यूज पीपल फॉर द? मैम कर सकते हैं ना, मैंने तो सुना है. द कैसे करोगे? देयर आर फ्यू पीपल्स कर सकते हो. द पीपल कैसे करोगे आप बताओ मुझे.
द क्राउड कर, द क्राउड कर सकते हो आप, द क्राउड ऑफ पीपल कह सकते हो आप, द पीपल नहीं लोगे, द क्राउड ऑफ पीपल यूज कर सकते हो, बिकॉज वहां पे आपने क्राउड को क्या कर दिया, यू हैव टेकन क्राउड एज